हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आर यू रेडी फॉर स्टडी? सो लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है आज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। सो डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम ऑफ पर्सन्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स, places, objects, ideas and feelings. Look at the following sentences. India is a huge country. The dog is a pet animal. Gold is a precious metal. Ravi is a boy. Physics is a difficult subject. In the above sentences, we see that the words in color are nouns. तो आपने देखा जो पिंक हाईलाइटेड में वर्ड्स हैं बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हाईलाइटेड वर्ड्स, we can call it nouns. So next is kinds of noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. There are 5 kinds of noun. So we will start from first one is proper noun. A proper noun gives a special name to a particular person, place or thing. Look at the following sentences. English is my favorite subject. Shri Ram Nath Kovind is the President of India. In the above sentences, English is the name of the particular subject and Ram Nath Kovind is the name of a particular person. Who is the president? So, they are proper nouns. Next is common noun. Common noun does not describe any particular person, place or thing को नहीं, ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं करता, वो कॉमन है तो इसलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस को या थिंग को डिस्क्राइब नहीं करेगा. इट डिस्क्राइब द सेम क्लास ऑफ द पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स को डिस्क्राइब करता है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द टीचर टीच द स्टूडेंट्स. महावीर अकेडमी इज अ नाइस स्कूल. इन द फर्स्ट सेंटेंसेस टीचर एंड स्टूडेंट्स, and in the second sentence school is the common noun. Next is collective noun. A collective noun describes a group or collection of people, place or things. Look at the following sentences. Our class consists of 60 students. Our army fought with great courage. तो आपने देखा क्लास और आर्मी जिनको हाईलाइटेड किया गया है वो क्या है? ग्रुप है. यहाँ पर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात की गई है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है. सो दे आर कलेक्टिव नाउन्स. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी, आइडिया, स्टेट, इमोशंस, एक्शन, फीलिंग एंड कंडीशन. Look at the following sentences. Sleep is necessary for every living thing. Honesty is the best policy. तो above sentences में आपने देखा बच्चे sleep और honesty ये क्या है? Abstract nouns की फॉर्म में है. Next is material noun. Material noun stands for the matter or substance of which things are made. Look at the following sentences. Mohan takes average sugar. I have a gold ring. In the above sentences, sugar, gold are material nouns. So extra facts को भी देख लेते हैं. A proper noun always begins with a capital letter if it is placed anywhere in the sentence. Every common noun has its plural form, but a material noun doesn't. तो आपने देखा proper noun के अंदर अगर आप proper noun को कहीं पर भी exist कर रहे हैं तो you have to start with a capital letter. और हर एक कॉमन नाउन को हम प्लूरल की कैटेगरी में लिखते हैं, लेकिन जब उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो हम उसको सिंगल की कैटेगरी में करते हैं. वी कैन फर्दर क्लासीफाई अ नाउन एज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. जिसको हम काउंट कर सकते हैं यू कैन काउंट इट, तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएगा. अनकाउंटेबल में जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यू काउंट काउंट. तो आप जैसे किसको काउंट नहीं कर सकते? आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नो. सो अनकाउंटेबल. आप हेयर को काउंट कर सकते हो? नो. दिस इज अनकाउंटेबल. सो लेट्स बिगिन विद काउंटेबल नाउन. अ काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड. इट कैन बी आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी. लुक एट द फॉलोइंग. हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव? आई हैव 2 पेन्स. तो हम आंसर दे सकते हैं. कितने पेन है आपके पास? हाउ मेनी पेन्स? सो आई हैव 1, बट द सेंटेंस सेइंग I have 2 pens. In the example, pens is a countable noun.
Uncountable noun. An uncountable noun cannot be counted. It can answer the question how much. How much water is there in the jug? There is about 1 liter of water. In the example, water is an uncountable noun की कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, water, milk, oil, लस्सी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों. तो इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे. नाउन्स को अच्छे से पढ़ना है और अनकाउंटेबल काउंटेबल की भी प्रैक्टिस करनी है और एज्यूम करना है चीज़ों को, कौन को हम काउंटेबल में रख सकते हैं और किन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में एग्जिस्ट कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.